Assalamualaikum. In the previous lecture, we had started the bacterial cell structure. उन्हीं lectures को continue करते हुए हम एक cell structure discuss करेंगे bacteria का आज, that is the cell wall of bacteria. Firstly, we are going to discuss the introduction of the cell wall. Bacterial cell wall is a structure between the extracellular substances and cytoplasmic membrane. साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन के दरमियान और उन सब्सटेंसेस के दरमियान जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं यानी सेल से बाहर प्रेजेंट हैं उनके दरमियान एक स्ट्रक्चर है दैट इज द बैक्टीरियल सेल वॉल. It is composed of peptidoglycan which is a macromolecule consisting of long glycan chains cross-linked with peptide fragments. Long glycan chains होती हैं और उनके अंदर peptide fragments जो होते हैं वो cross-linked होते हैं. Archaeobacteria do not contain peptidoglycan. Instead, they have polysaccharides and glycoproteins. Archaeobacteria के अंदर peptidoglycan नहीं होता बल्कि वो उनके अंदर क्या होता है polysaccharides होते हैं और glycoproteins होते हैं. अब हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि सेल वॉल की कितनी टाइप्स होती हैं. देयर टू टाइप्स ऑफ सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. These types are present on the basis of staining after specific dyes. ये types हमने कैसे बनाई हैं कि हमने different dyes से इनको stain किया तो जिन dyes ने वो stain absorb कर लिया they became the gram positive ones and the dyes which didn't became the gram negative one. Firstly हम gram positive को discuss कर लेते हैं. Gram positive they retain the stain after primary dye. That is crystal violet and grams iodine. ये प्राइमरी डाई के बाद स्टेन को रिटेन कर लेते हैं और वो प्राइमरी डाई कौन सा है क्रिस्टल वॉयलेट और ग्राम्स आयोडीन. द फाइनल कलर आफ्टर स्टेनिंग इज पर्पल. पर्पल कलर आ जाता है सेल वॉल का. इट हैज वन मेजर लेयर. इसके अंदर एक सिंगल मेजर लेयर प्रेजेंट है. It has more peptidoglycan, so it is thicker. Peptidoglycan की एक dense layer present है और वो dense layer contribute कर रही है इसकी thickness में. So they are about 20 to 80 nanometer thick. It has comparatively less lipids. इसके अंदर जो lipid content है वो बहुत कम है. It has teichoic acid and lipoteichoic acid. इसके पास teichoic acid होता है और lipoteichoic acid होता है. हमने बात की थी ग्राम पॉजिटिव में कि दे हैव अ सिंगल मेजर लेयर. इसका मतलब है कि आउटर मेम्ब्रेन तो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है. पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट इन सम स्पीशीज. कुछ स्पीशीज के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है, रेयरली प्रेजेंट होगी इसका मतलब है पेरीप्लाज्मिक स्पेस. इट इज मोर परमिएबल टू मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा परमिएबिलिटी अलाउ करती है. Henceforth it offers less resistance. इसीलिए जो resistance है वो कम होगी, इतनी ज़्यादा resistance offer नहीं करेगी बल्कि permeability offer करती है. Porins are absent in the gram positive cell wall. Gram positive cell wall के अंदर porins present नहीं होते. अब हम ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की एक डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है. पहले सेल मेम्ब्रेन आ रही है, इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. देन वी कैन सी द सेल वॉल. द सेल वॉल हैज अ डेंस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर. There is a periplasmic space present too. Then there is this long chain. The labeling shows it is the lipoteichoic acid. And then there are also the small chains present. The small chains are the teichoic acid. Next is the gram negative cell wall. Gram negative cell wall क्या होती है कि it retains the secondary dye. Primary dye को retain नहीं कर रही बल्कि safranin, that is the secondary dye, is retained by the gram negative type of cell wall. It shows pink color after staining. Final color क्या होगा cell wall का? Pink हो जाएगी. It has two major layers. इसके पास दो layers होती हैं unlike the gram positive bacteria which has a single major layer. Hence the outer layer is present here. इसीलिए इसके पास एक outer membrane या outer layer present होती है. It has less peptidoglycan so it is less thick. इसके अंदर peptidoglycan बहुत कम होता है इसीलिए बहुत कम thick होती है. 8 to 11 nanometer thick है. It has more lipid. Lipid content इसके अंदर बहुत ज़्यादा है.
पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट इन ऑल स्पीशीज। वहां पे हमने कहा पेरीप्लाज्मिक स्पेस कुछ स्पीशीज में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर यूनिवर्सल कैरेक्टर होगा पेरीप्लाज्मिक स्पेस की प्रेजेंस। देन इट ऑफर्स लेस पेनिट्रेशन। लेस पेनिट्रेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती कि वो इजीली पास कर जाए, सो इट इज लेस पेनिट्रेबल। इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करती है। इट हैज पोर्स इन इट। पोर्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है पोरिन प्रोटीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। अब हम ग्राम नेगेटिव की डायग्राम देख लेते हैं। ग्राम नेगेटिव की डायग्राम में देखें तो ये सबसे पहले तो आपको पोरिन्स नजर आ रहे हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये लिपोपोलीसैकेराइड्स हैं जो आउटर मेम्ब्रेन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन के बाद देयर इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल। पेप्टाइडोग्लाइकेन आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा नहीं है, जब हमने ग्राम पॉजिटिव में देखी थी तो बहुत डेंस लेयर थी। एंड देन देयर इज द इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन्स भी हो गई, पोरिन्स भी हो गए, पेप्टाइडोग्लाइकेन की छोटू सी लेयर है। In order to differentiate between the gram positive cell wall and gram negative cell wall, हम इनकी एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में देखें सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बॉटम टू टॉप जाएंगे, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है इट इज द सेल मेम्ब्रेन। देन सेल मेम्ब्रेन के बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। ग्राम पॉजिटिव की पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आपको लिपोप्रोटीन्स नजर आ रही हैं। Then there is the peptidoglycan layer. यहाँ पे आप देखें पूरी सेल वॉल ही पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन के बाद। However, in the case of gram negative bacteria, पेप्टाइडोग्लाइकन की बस एक टू लेयर है, मतलब सिर्फ दो लेयर्स बनी हुई हैं। इसके अंदर एक डेंस लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिर्फ टू लेयर्स हैं। फिर इसके बाद जो ग्राम नेगेटिव है उसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। And not only the outer membrane is present, the porins are also present. और लिपोपोलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट हैं। ना लिपोपोलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है ग्राम पॉजिटिव में, ना पोरिन्स प्रेजेंट है, ना आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिर्फ एक डेंस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट है। It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is dash lies between the peptidoglycan layer of cell wall and cytoplasmic membrane. Option A is porins, option B is peptidoglycan, option C is periplasmic space and option D is lipids. उन्होंने पूछा है कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के दरमियान सेल वॉल की और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान क्या चीज प्रेजेंट होगी। We are going to discuss the solution of the practice question. Correct option C बनती है, that is the periplasmic space. Periplasmic space is the structure that is present between the cell wall and cell membrane. It is the site having certain enzymes. और ये वो site है जिसमें certain enzymes present होते हैं। I hope today's lecture was clear. आपको दोनों types of cell wall की समझ आ गई होगी। Thank you very much.